السلام علیکم، خبرناک عید ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہے عطاء اللہ قاسمی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ساتھ ہیں زینب جمیل، آپ ماڈل ہیں، اداکارہ ہیں اور خبرناک آن سنڈے کی کو ہوسٹ بھی ہیں. اور ڈمی میوزیم سے آئے ہم سب کے فیورٹ دانشور صاحب. کیا حال ہے جناب؟ آپ کو بہت بہت عید مبارک. مبارکباد کو چھوڑیے، مستری صاحب کا اتنا لمبا انٹروڈکشن. یہ جو میرے ساتھ بیٹھے زینب جمیل اور میرا اتنا سا انٹروڈکشن. سر آپ دانشور ہیں اور ڈمی میوزیم سے ہیں، پوری دنیا آپ کو آپ ہمارے فیورٹ ہیں. کمال کرتے ہیں. انہیں آپ نے ماڈل کہا تو وہ ہے نا ماڈل، تو میں کیا اسکوٹر ہوں. آپ کی وجہ شہرت ماڈلنگ کہاں ہے؟ پچھلے 1 کروڑ سال سے بسکٹ بیچ بیچ کے پھاوا ہو گیا. بزرگوں ساڈے والوں عید مبارک ہوے تانوں اج دی. نہیں نہیں ایسے نہیں، صادق عید پر گلے ملتے ہیں چلو سب کے ساتھ. یہ تو میں نے ازراء تفنن کہہ دیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو 14 اگست کی. 14 اگست عید کیسی گزر رہی ہے؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے، دیکھو کیسی گزرتی ہے. نہیں پھر بھی شدید مندی کا رجحان ہے. مندی کا رجحان؟ جی، حرام میں 1 پیکٹ بھی آیا ہوا گوشت کا اور چرس کا. اچھا سر، ہو کیا رہا ہے بتائیے نا. بجلی بنا رہا ہوں. بجلی بنا رہے ہیں؟ جی نہیں کیا مطلب کوئلے سے، گیس سے؟ پہلے میں نے بشرا انصاری سے بنوایا تھا بجلی کا کریکٹر، آپ کو یاد ہوگا. اچھا جی، سب دیکھنے والوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اچھا عطا صاحب یہ بتائیے کہ کس عمر میں آپ نے اپنے اندر کے لکھاری کو ڈسکور کیا اور ابتدائی چیزیں کیا تھیں جو آپ نے طے؟ غالباً میں 10ویں میں تھا شاید، تو جنرل سکندر مرزا کے خلاف ایک روزنامہ ہلال پاکستان ہوتا تھا. اچھا، اس میں میرا لیٹر چھپا تھا ایک. واہ. اس کے بعد فرسٹ ایئر میں ہفت روزہ شہاب مولانا کوثر نیازی نکالتے تھے، ٹھیک ٹھیک. تو کچھ یوں ہی کے عنوان سے میں نے کالم لکھنا شروع کیا اس میں. بلکہ ایک دلچسپ واقعہ ہوا، میں نے لکھا جی کہ ایک شاعر تھے حیات صاحب، تو مشاعرے میں پرانی بات انہوں نے وہ کلام پڑھا تو لوگوں نے کہا جی واہ حیات صاحب، واہ حیات. میں نے جب وہ چھپ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کاٹ دیا گیا. وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ کوثر نیازی صاحب کا نام حیات تھا. اور پھر نوائے وقت میں میں نے 35 سال کالم لکھا میں نے. ہر وقت یعنی مجھے اب 52 ایئرز ہو گئے ہیں کالم لکھتے ہوئے جی. اور لیکن اس سے بھی پہلے اصل میں یہ کالم کی جو نثر کی جو ابتدا ہے نا، فقاہیہ ہیومر کی، وہ میں نے شاعری سے کی تھی. میں حجویات لکھا کرتا تھا بہت. اچھا. اورینٹل کالج میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کے جو سامنے سے گزرتا تھا اس کی میں حجب کہہ دیتا تھا. بلکہ جو سامنے سے گزرتی تھی وہ بھی ایک ہے. ویسے وہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کا نام یوسف تھا، کلاس فیلو میرا. اس کی شادی ہوگی، وہ ہوگا 19 سال کا، اس کی شادی ہوگی ایک 40 سال کی خاتون سے. تو مجھے کہنے لگا یار تم نے وہ لکھنا ہے سیرا. میں نے کہا جی حاضر ہوں میں. تو میں نے سیرا لکھا کہ کچھ تم نے بھی سنا ہے یہ کیا ماجرا ہوا، یوسف ہمارا ہاتھ زلیخا کے بک گیا، ساری نصیحتیں گئیں اپنی حرام میں، لونڈا غریب آ گیا بڑھیا کے دام میں. اچھا، روزن دیوار سے تھرو آؤٹ آپ کا یہی عنوان رہا. عنوان یہی. یہ کس سن میں شروع ہوا؟ 67 میں 67 میرا خیال ہے. یعنی آپ کا کالم اور پیپلز پارٹی ایک ہی سن میں بنے؟ یہ ایک ہی سن میں بنے بالکل. سب سے پسندیدہ کالم آپ کا بھاگتا والا ایئرپورٹ. ہاں، سیم پیس آف لٹریچر. ٹوین اوٹر ایک چھوٹا سا جہاز تھا جس میں اس میں بھاگتا والا ایئرپورٹ. کتنے لوگ تھے آپ؟ میرے خیال میں ہوں گے 20-25. اور باقاعدہ ہمیں بٹھایا گیا کہ بھئی بیلنس قائم رہے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جیسے جائیں. تانگانی دابو یا اولار ہوتا. بالکل اسی طرح. اور یعنی آپ یقین کریں تقریباً وہ جو کلینر تھا نا اس نے ہاتھ مارا چلو. اس کے بعد وہ جہاز اڑا ہے وہ. اور بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب یہ نہ کہیے گا کہ بوتلیں بیچنے والا بھی آ گیا. بلکہ آپ کو مزے کی بتاؤں، ایک دفعہ وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا
आंधी चली तो वो उड़ के जाके एक जहाज को जाके लगा तो उसमें बहरहाल हम बैठे हैं और उसकी जो थी ना परवाज वो बहुत नीची थी, तो मैंने उसको फिर पाकिस्तान का सिंबल बनाया मैंने उसे। कि अच्छा आपको। पिछले दिनों आपका कादरी साहब से मुतालिक एक कॉलम बड़ा मशहूर हुआ। जी, मेरा एक कॉलम का उन्वान था कि जब तारुल कादरी मेरे क्लास फेलो थे, अच्छा उन्होंने असल में ये बयान दिया कि आलम रोया में ख्वाब में इमाम अबू हनीफा के वो शागिर्द रहे हैं, यानी ख्वाब में। ख्वाब में, और उनसे इल्म हासिल किया उन्होंने 15 साल। वाह। मैंने कहा जी कि तारुल कादरी साहब को याद नहीं है, मैं उनका क्लास फेलो था और ये उस वक्त भी झूठ बोला करते थे। क्यों करते कि हर चीज ख्वाब में ही करते रहे? असल में ये जो तारुल कादरी साहब की सारी सियासत जो है ना, ये है ही ख्वाब। मेरा ख्याल सोते बहुत है। हाँ, सोते बहुत है। ताब साहब और जफर इकबाल साहब का शेर भी थे जी। ख्वाब ख्वाब से मुतल्लिक जफर इकबाल साहब का बड़ा लाजवाब शेर, लाजवाब शेर है। मैं कहता हूँ कि शेर आके चीर फाड़ गया मुझको ख्वाब में, आहा। शेर आके चीर फाड़ गया मुझको ख्वाब में, दम भर को मेरी आंख लगी थी मैं चांद पर। हाय 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 मुझे। वाह। बल्कि ख्वाब पे मुनीर न्याजी का भी एक बड़ा खूबसूरत मिसरा, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। ये ख्वाब मुनीर का है, मुनीर न्याजी का नहीं है। मेरे दाईं जानिब ये जो लाश बैठी हुई है, पहले तो मैं ये आप जैनब से कह रहे हैं? जी मैं जैनब से ही कह रहा हूँ। और मुझे बताएं, यहाँ तो फैल स्पीकरों वाला बैठा है। आपका दिल कभी चाहा हो जैनब के कॉलम लिखूं अखबार में? नहीं, वो राइटर है ही नहीं, उसका काम नहीं है। मुझे उसके अंदर एक राइटर दिखाई दे रहा है। वो एक अदाकारा है, वो एक मॉडल है, वो एक होस्ट है, एंकर है, सहाफी है। मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसमें शब्द एक उस ड्रामे का हैं? नाम। शब्द देख नु ते गुजरियां भी मुद्दतां हो गई चाचा जी। वो तो कासमी साहब दा है यार। वो कासमी साहब का शाहकार है वो। अच्छा सॉरी, ख्वाजा एंड सन्स। अच्छा, ख्वाजा एंड सन्स, ये भी नहीं पता कि ख्वाजा एंड सन है उसका नाम। वो अताउल हक कासमी का था, ख्वाजा एंड सन। मेरा ख्वाजा एंड सन्स है, क्या है क्या है? किराना स्टोर है। बोलो ना क्या हो। मुझे पता ही नहीं चला आपने मुझसे क्या पूछा है, क्या पूछने की कोशिश की है। याद आई चली। बस तो जिंदगी के खसो खाशाक को कभी अब इन्होंने खसो और इसके अलावा कोई और फ्रेज को याद हो? कैरम। नहीं, देखो की मांग रहे हो सर? अच्छा, अता कासमी साहब का ड्रामा ख्वाजा एंड सन, जी आय है क्या लाजवाब। उसका बेस्ट कैरेक्टर कौन था आपके? आय है बुशरा अंसारी। अच्छा, मैं अता साहब से जानना चाहूंगा, जाहिर है कि आपको तो या ख्वाजा साहब पसंद होंगे या सन पसंद होगा या वो मुड़क्का अदब वाली लड़की, लेकिन यकीन कीजिए जितना जानदार कैरेक्टर, हालांकि उसमें वो पहले मुझे नाम लेने दे, मुमकिन है हम दोनों का एक ही ख्याल हो। प्रोफेसर अल्लादीता उदास, यही कैरेक्टर। और एम शरीफ ने किया था ये। एम शरीफ ने क्या एम उम्दा शरीफ ने किया उसने, लाजवाल कैरेक्टर किया। बहुत उम्दा। और और ये वो आप ये समझ लें, वो कुरुतलैन हैदर का समझे बॉस था। वो कुरुतलैन हाँ। हैदर इसी किस्म के बॉस के हाथों तंग आके जी। पाकिस्तान छोड़ गए। एग्जैक्टली। बल्कि ये जिस दौर की कासमी साहब बात कर रहे थे, ये ज़िया दौर था। क्यों कासमी साहब? जी जी, ये ज़िया मोइनुद्दीन का पीक्स का टाइम। किधर से आगे? दो अदवार थे, एक ज़िया दौर और एक अयूब दौर, अयूब खोसो का। एक ज़िया मोइनुद्दीन का, जी। एक अयूब खोसो का। अयूब खोसो का दौर। तो मिस ज़ैनब, वो लिपस्टिक आपके पास लिपस्टिक भी लगाएंगे आपके? आपके पास है या नहीं? है। बस यही पूछ रहा है। आपको लिपस्टिक की जरूरत अचानक क्यों पड़ गई? मुझे जरूरत नहीं। फिर
ਇਹ ਹੁਣ ਐਟਮਾਂ ਕਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ बल्कि आइटम्स के साथ उसे इम्प्रेस कर रहे हैं आप, किसे? जैनब को और किसे? ਭਾਈ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ देखें आप इस तरफ बात सुने, इधर झुकाओ, इधर रखें। आफ्ताब, इस उम्र में झुकाव दाईं जानिब हो जाता है। तो कभी ये आप बातें अता साहब से क्यों नहीं पूछते? मैं लिपस्टिक की बात अता कासमी साहब से पूछा। जैन वो जैन, आए उसे जैन कह रहे। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ लेकिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ जियो न्यूज पर। वेलकम बैक। जैनब, ये बताइए कि कॉमेडी करना आपके ख्याल में आसान है या आम रोमानवी रोल? मेरा ख्याल है रोमानवी रोल। आप जैनब है देखें, ये इंसान बाय नेचर रोमांटिक होता है। इंसान होता है ना मेरा ख्याल है कॉमेडी इजी है मेरे लिए, लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन मे बी मैंने खबरनाक काफ़ी अरसा रेगुलरली किया है और पसंद है, तो कॉमेडी करना मुझे इजी लगता है, ऑल्दो इट इज़ टफ। रोमांटिक कैरेक्टर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इजी भी लगता है और टफ भी है। मेरा ख्याल है ये टोन है। अरे मैं कह रही हूँ कि है टफ लेकिन मुझे इजी लगता है। देखा, मुझे अरे कहा, किस कदर फ्रैंकनेस थी बात के अंदर। मेरा झुकाव फिर दाईं जानिब हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ क्यों नहीं कराओगे? अच्छा जी, ये बताइए, मॉडलिंग भी करती हैं आप? आप मॉडलिंग करती हैं? सर आपको क्या हो गया? सर आपसे पूछते हैं क्या? सर आप बोलते क्यों नहीं खुलते? आप बोलने देंगे उस बेचारी को तो बोलेगी। माशाल्लाह, आर्टिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, टूटियां भी ठीक कर लेती हैं, कैटरिंग का काम भी जानते हैं। वाओ। अच्छा जी, ये बताइए कि मॉडलिंग में ज्यादा पजीराई मिली या अदाकारी में? एक्टिंग में। एक्टिंग में। एक्टिंग लेकिन- में ऑल्दो मॉडलिंग इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन पजीराई एक्टिंग से ही मिलती है। अब तक सबसे अच्छा काम आपके ख्याल में आपका कौन सा है? मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त भी ऑन एयर है, आपकी कनीज जियो पर ही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और सो फार आपका ये बेस्ट है? अभी तक, अभी यानी कि जो ऑन एयर है, जो अभी इन प्रोसेस है, आई कैन नॉट टेल दैट। मिस जैनब, आपको देखा तो सोच रहा था, मेरा एक ड्रामा था हाफ प्लेट, अगो आहा हा करीदा। मैं देख रहा हूँ आपकी आहा हा आजकल ज्यादातर कासमी साहब के लिए। अच्छा जैनब, ये बताइए कि आप फैसला स्क्रिप्ट देखकर करती हैं या बजट देखकर? बजट देखकर। मैंने आपसे पूछा है। मैंने तो आपको बताया है। आपको कैसे पता है कि बजट देख के करती हैं? मैं जानता हूँ, इसहाक डार जब भी बजट पेश करता है, ये उसे देखने के फौरन बाद फैसला कर लेते हैं। मेरा ड्रामा था हाफ प्लेट, अगर उसमें आपको थोड़ा सी character चावल दो दिया जाए अच्छा, तो आप करेंगी वो? अच्छा जैनब ने कुछ सुन बना लिया है अब जरा- देखिए ये बैठे किस तरह। लाफ्टर किधर है? इस कदर फजूल बेतुकी बातों पर आप जबरदस्ती लाफ्टर्स ले रहे हैं। अच्छा जी, आप स्किट्स भी करती हैं, जी। हम सब उम्मीद से हैं। ज्यादा एंजॉयबल काम क्या है, सीरियस या कॉमेडी? कॉमेडी। कॉमेडी ऑब्वियसली कॉमेडी। ज्यादा एंजॉयबल है। आपका झुकाव बाईं जानिब हो सकता है? उस तरफ मत जाना, कासमी साहब मुझे वैसे ही मशकूक आदमी है। कासमी साहब, मिस जैन को देख के आप भी खामोश हो गए। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं? अपने जैसा समझ रखा आपने? नहीं, अपने से बुरा समझता हूं। जैनब बेचारी सोच रही मैं कितने बात ना मैं सजे वेख सकती हूं ना गम। ना, एक संजीदा नौयत का सवाल मैं मिस जैनब से पूछना। जी जल्दी से पूछिए। जैनब, आप डड्डू की आवाज निकाल लेते हैं?
अच्छा ज़ैनब ये बताइए ईद किस तरह मनाती हैं, रूटीन क्या है? ईद पे अमूमन लोग ये कहते हैं कि हम ईद रेस्ट करके गुजारते हैं, स्पेशली जो आर्टिस्ट वगैरह, लेकिन मैं बिल्कुल रेस्ट करके ईद नहीं आप तो गुजारती। काम करती हूँ। नहीं, मैं काम भी नहीं करती। ईद पे- पर फ्रूट चाट लाए मैं बिल्कुल घर पर बैठकर ईद नहीं गुजारती, रेस्ट नहीं करती। मैं रिलेटिव्स के घर भी जाती हूँ, फ्रेंड्स की तरफ भी जाती हूँ। हमारे यहाँ तो कभी नहीं आई हैं। ना आप मेरे रिलेटिव हैं, अभी तक फ्रेंड भी नहीं है। और बात करने दें। अच्छा जी, फिर और ईद को बड़े मैं पुरजोश तरीके से मनाती हूँ और डल ईद नहीं होती मेरी। अच्छा आधे लोग ना फायरिंग कर रहे हैं फुल तैयार श्यार होके। अच्छा फिल्में देखती हैं आप? बिल्कुल देखती हूँ। क्या फेवरेट फिल्में किस तरह की, क्या है जॉनरा? ऐसी फिल्म जिससे कुछ सीखने को मिले। आपने मकैन का नहीं फिल्म देख हाँ, वो भी हो सकता है। रिसेंटली सबसे अच्छी को फिल्म देखी हो? हसीना CNG। सर ना करें, उस बेचारी को बोल लेने दे प्लीज। ज़हनी तौर पे दानिशमंद साहब सोते हैं इनकी कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट है। हनी की मैं फिल्म पूछ रहा था जैनब से कि कौन सी? वो हाल ही बता में रही एक बहुत अच्छी फिल्म देखी। हाल ही में 2 फिल्में अच्छी देखी हैं। एक फिल्म काफी अरसे से आधी देख रखी थी, उसको कंप्लीट किया, डेविल्स एडवोकेट। और दूसरी मैंने देखी जो कि मुझे बहुत पसंद है, फिल्म्स तो बहुत सी देखी हैं, फाइंडिंग नेवरलैंड, मुझे बहुत पसंद आई। उसके अलावा फिल्म्स तो मैं जॉनी डेप की। या डेविल्स एडवोकेट के अलावा वो भी देखें आप, रशीद एडवोकेट। देख किस संजीदगी से क्या कर रहे हैं सर आप? डेविल्स एडवोकेट देखी आपने? अल पचीनो की फिल्म है, अल पचीनो। लानत पे जो अलपति। सर ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਰਸ਼ੀਦ ਐਡਵੋਕੇਟ। कहाँ रशीद एडवोकेट, कहाँ डेविल्स एडवोकेट। आपको जनरल प्रॉब्लम्स एक फीमेल आर्टिस्ट होने के नाते से क्या क्या जिन्हें आप फेस करती हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ट्रैक्टर नहीं चला सकती। फिलहाल तो ये है। वो कह रही है फिलहाल आप प्रॉब्लम। कल सिद्ध Sense होइए of- प्रोग्राम चाहेगा इंजेक्शन होना अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है, अच्छे हैं सब लोग, काफी कोऑपरेटिव हैं। मतलब आपको फैमिली लाइफ में, सोशल सर्कल्स में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मिसकमिटमेंट्स हो जाती हैं कभी कभी, तो वो उसका मेरा ख्याल है स्पेसिफिक वो फीमेल्स को के लिए नहीं होती मिसकमिटमेंट। ये कि एक चीज को फाइनलाइज किया, फिर थोड़ा सा उसको डिले कर दिया, तो अगर आप 2-3 जगह पर काम कर रहे हो तो फिर दूसरे जो ग्रुप है उसको प्रॉब्लम होगा आपकी उस मिसकमिटमेंट की वजह से। तो वो मेरा ख्याल है स्पेसिफिक ये नहीं है कि लड़कियों को प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली फिर पूरी टीम का प्रॉब्लम बन जाता है। आपका नजम सेठी के बारे में क्या ख्याल? ही इज अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। वेरी गुड। कासमी साहब का काम आपको कैसा लगता है? वंडरफुल। तन पता है वो घरों सब्जी लेना है कौन, किसकी बात कर? दानिशमंद साहब से। अच्छा, सहाफत में कैसे आई हैं? सहाफत ना सर प्लीज ना करें। जब ये साथ बैठेंगी कुछ तो होगा। वो भी साथ बैठे हैं, किस कदर डिसेंट बिहेव कर रहे हैं नहीं वो। सर वो भी मौके की तलाश। तो दिनों रात वक्त हुआ है गाने का। आज जो गाना हमने सिलेक्ट किया है वो एम अशरफ की इंतहाई खूबसूरत धुन है। फिल्म का नाम है जिंदगी कितनी हसी है, गाया मेहदी हसन खान ने, और आज पेश करने जा रहे हैं शकील जी। जनाब से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सकून न पाएगा, दिल कहीं जब सकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत खूब जी, बहुत खूब, एक्सीलेंट। बहुत उम्दा ट्रिब्यूट मेहदी हसन खान को, बहुत उम्दा ट्रिब्यूट है एम अशरफ को। बहुत ही खूबसूरत गाया आपने। वेलकम बैक जी। खबर है कि अमेरिका में एक नशेई ने करोड़ों रुपए मालियत का हीरा चंद ग्राम चरस के एवज औने पौने दाम बेच दिया। लो जी, नशेई जिथे भी ये घटिया ही है। ये नशा चीज ही ऐसी है, इसीलिए तो इसको जलील तरीन चीजों में से एक कहा जाता है। नशे के लिए तो लोग इज्जत नफ्स बेच देते हैं, जो हीरे से भी कीमती है। सर वो ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਓਏ ਨਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੇਚਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-10 ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਫੀਤਾ ਕੀ? ਸਾਰੋ ਫੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ फीता होता है, फेस है, फेस है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਲੱਭਾ ਕਦੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ? ਉਧਰ ਵੇਖ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ,
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਥੋਕ ਚ ਕੂੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा तुम हो कौन? ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹਨੇ ਹੀਰਾ ਵੇਚਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਤੇ ਚਰਸ ਪੀਣਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਚੁਰਾਇਆ, ਵੇਚਿਆ, ਤਰੋੜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਜਿਸਮ ਉਸਲੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। जब जिस्म टूटता है तो जूते खा लिया करो, आसान काम। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟ ਭਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਤੌਬਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਬੂੰਦਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਮਲੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। साथ कौन है शामिल बाजा तुम? ਹੈਲਪਰ ਹੈਲਪਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ। कब से कर रहे हो ये फजूल हरकत? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ 15-16 ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਜਰਦ ਪੀਂਦੀ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸੇਬ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੀ ਫਵਾਇਦ ਨੇ। ਜੀ ਆ 30-35-40 ਸੀੜੀਆਂ ਇੰਜ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। वाह। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹ ਸੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ। उम्र कितनी तुम्हारी? 28 ਸਾਲ। कितनी? 28 साल। 28 साल में 35 सीढ़ियां। अमेजिंग। ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਕਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। जी। खबर है कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस्लामाबाद में जारी धरनों में 24-24 घंटे ड्यूटी देते कई पुलिस एहलकार और अफसरान बीमार हो गए। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਨੋਂ ਧਰਨੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲਾਈ ਹੈ। पुलिस वालों ने? ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। नहीं नहीं, नींद पूरी नहीं। असल चीज जो है वो नींद है। नींद के बारे में कहते हैं कि स्लीप इज अ वेपन। नींद जो है बाकायदा हथियार है, और नींद पूरी नहीं होती। इस कदर ताफुन है, पूरा इस्लामाबाद में फैला हुआ है। और अब तो अदालती हुक्म के बाद स्कूल भी खाली करवा लिए गए। रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे आम बीमारी है गले की, फिर हैजा, ਓਏ और उसकी बुनियादी वजह है बाजारी खाना, सब स्टैंडर्ड खाना। तो अब उससे क्या हो रहा है कि जिसे छोटा सा अर्जा भी लायक होता है, वो लंबा चौड़ा को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाता है और भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आगाज किया था अफसरों ने। वहां कोई पुलिस एहलकार, कोई सरकारी मुलाजिम ड्यूटी देना पसंद ही नहीं करता। देखिए, तब्दीली कुर्बानी मांगती है और पुलिस को कुर्बान ही कर देना चाहिए। सारी पुलिस को। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਦੇ। वैसे सवाल ये है, इमरान खान को किस हकीम ने कहा था ये पंगा लेने का? अब मैं उस हकीम की निशानदेही तो नहीं कर सकता, लेकिन एक नहीं, हुक्मात है बाकायदा। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि धरना इतना तूल पकड़ लेगा। तो ज्यादा हफ्ते की बात थी। सोचा यही गया था ना कि इमरान खान 1 लाख 1.5-2 लाख बंदा ले जाएगा, और वहां जाते ही वो तो फिर स्टार्ट से ही काम कमजोर रहा। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਠੀ ਨਾ ਜੀ। ना नहीं, उस उंगली ने ना उठना था ना उठी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕਸਮ। ਸਰ ਧਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸੀ, ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ, ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ, ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਊਂਠ ਲੈ ਲਓ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਊਂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। क्या मिल गई? ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ 33 ਪੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਸੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਨੂਸ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੜਗਾੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੱਟਰ 'ਚ ਬਾਂਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿਆ। यार फजूल बातें कर रहे हो। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲੋ। मैं पागल हूँ इस्लामाबाद। बाकी सारे इस्लामाबाद में बड़ी बदबू आती है। मैं तो सलीम ਅਸੀਂ इस्लामाबाद चले सन अच्छा। ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ। 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਪਾਟੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मैं इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜੱਸੀ ਦਾ। और मैं क्या करूँ बताओ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा ये तो हो गया ना पुलिस वाला। जी जी। साथ है पीटीआई का वर्कर जी। वो पीछे क्या आइटम है? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਮੀਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸਨ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਟਕਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨੇ 'ਚ। सारा कुछ खर्च कर दिया ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। वापस चले जाएं बर्मिंघम। ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਜੇ? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਕਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। वैसे यार आप बताओ आपके साथ क्या हुआ? क्या दसा आफ्ताब साहब, मैं इमरान खान ना बड़ा फैन हाँ। मैं उस वर्ल्ड कप तकने से आस्ट्रेलिया भी गया था। अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया चले गए? हाँ जी, साइकिल ते बह के जी, नाल रस्ते चूचे भी बेचते रहे। अच्छा जी, फिर अब क्या हुआ? बाद जो लंदन आया, तकरीर की थी, उससे आखिर जुलो मारे नाल अंपायर ने अंगल उठने वाली है। अच्छा फिर यहाँ आ गए, सारे की रोटी खिलाई, पैसा खर्च किया, गड्डियां इन्हें की प्रोवाइड कीतियां, सारा कुछ किया। आखना जी आज उंगली उठसी, आज उंगली उठसी। जब पता नहीं समझ नहीं इसने भाई उंगली गई कुथाई है। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। कासिम साहब काफी देर से सोते हैं। कासमी साहब, आपको शायरी का मशवरा किस अहमक ने दिया था? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਲੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਸਮੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ? ਨਾ ਕਰ। ਸਰ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। जैनब ये बताइए फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर तो नहीं मैं बता सकती। ओल्ड पाकिस्तानी इंडियन, ओल्ड पाकिस्तानी इंडियन जैसा खबरनाक में हम गाने, वो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली खबरनाक में आने के बाद मुझे हाँ वो ज़ौक जागा। अच्छा, no doubt। अक्सरियत हमारे यंगस्टर्स की जो है वो ये कहती है कासिम साहब कि हमने तो रीडिस्कवर किया, हमें तो पता ही नहीं था रशीद अत्रे कौन है, हमें तो पता ही नहीं था ये खजाना हमारे अंदर हमारे पास मौजूद है। मास्टर अब्दुल्ला कौन है, मास्टर इनायत कौन है? सही बात। इसका बहरहाल आगाज मौसूफ ने किया। स्टूडियो 2.5 और सिल्वर जुबली, जी, ये लाजवाब स्टेज शोज थे जिसमें आगाज किया इन्होंने पुराने म्यूजिक को, जिला बख्शी। और मैंने ये आइडिया एक्चुअली अनवर मकसूद साहब के इस थॉट से लिया था कि असल म्यूजिक तो था ही वही। आपने तो खैर बहुत सारे आइडियाज मेरे चोरी किए, बहुत सारे। और क्या आपका आइडिया चोरी किया? ये आइडिया मेरा था। देखिए उस वक्त फिल्में थी कासमी साहब, जी जी, अरमान, दोराहा,
सुभान अल्लाह। दबंग 2। फिर मतलब अरमान दोराहा से आप सीधे लेकर होके तो बैठे सर। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अच्छा मेरी कनीज नाच सुनो। बड़ा खूबसूरत नाम था। नहीं, आपकी कनीज। मेरी कनीज नहीं है, आपकी कनीज। सितारा और मेहरुन्निसा। वाह, गो आज गई है। अच्छा सर, फिल्में नित नहीं बन रही हैं, बहुत उम्दा बन रही हैं, आप क्यों नहीं निकलते घर से? फिल्में देखने क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं जाता हूँ। कब जाते हैं? आप तो कहते हैं मैं नहीं देखता। देखता नहीं। सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? आए हैं। इमरान को मैं बड़े करीब से, क्योंकि अक्सर देखा होगा मैं साथ ही इमरान को 1 फुट के फासले से अच्छा टीवी पे देख रहा होता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है इसमें इमरान ठीक है। इमरान हाशमी की बात कर रहा है। बेतुकी गुफ्तगू। अच्छा, आप अच्छा, ब्रेक के लिए बाहर नहीं जाना पसंद करेंगे? हम दोनों को भेज दो। आप और अता साहब से रहे। एक्सक्यूज मी अच्छा सर, ये बताइए सर। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज का अदीब कहाँ खड़ा है? खड़ा कहाँ है? वो बैठा है। सर क्यों कॉमेडी कर रहे हैं? आपको बतौर इंतहाई- कॉमेडियन बुलाया? नहीं, बतौर डीसीओ बुलाया। अच्छा अता साहब, ईद पर क्या खाना पसंद करते हैं खास तौर पे? अब सच्ची बात यह है कि मुझे तो कलेजी खाना पसंद है। कलेजी तो बड़ी लाजवाब चीज है। हाँ। आगाज कलेजी से करते हैं, फर्स्ट हाँ। कोर्स जो है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले कलेजी और उसके बाद फिर वो बनते हैं, बल्कि बुला लेते हैं हम, वो हमारे करीबी है, वो जो कुक होते हैं, कुक जो होता है ना वो। अच्छा, वो फिर बाहर लगा लेता है सामान, फिर तिक्के विक्के कबाब। तो शब्देग आप शब्देग क्या बड़े नाम ले लिया आपने? बड़े एहतमाम से बनाते हैं। तो एक दफा मैं कराची के एक होटल में ठहरा था मैं, तो मैंने मेन्यू देखा तो उसमें शब्देग लिखा हुआ था। अच्छा, मैं तो पागल हो गया, क्योंकि शब्देग तो हमारी अम्मी बनाती थी, वो अरसा पहले कहीं खाई हुई थी। मैंने फौरन ऑर्डर किया। अब साहब वो उसको शब्देग कहना, वो आप उसको गोंगरू गोश्त भी नहीं कह सकते आप। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने जनरल मैनेजर को फोन किया। मैंने कहा जी आपने मेरे सकाफती जज्बात को मजबूर किया, आपने अगर इस डिश का नाम ना बदला तो मैं आप पर केस कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, आपको सारे खाने बनाने आते हैं तो शब्देग नहीं आते? नहीं, शब्देग उसकी वजह ये ना कि ये आप मेरे लिए सीख ले प्लीज। और दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहली चैलेंजर जी जनाब। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। चले गॉड, आपको तो शर्म आ गई ईद वाले दिन। आपको शर्म आ गई, मज को नहीं आई। किसको? माजिनू जनाब। जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है वो कौन थी, मूसीकार मदन मोहन। बच्चे वो कौन थी? जी ईद के मुनासबत से आज का ये एक सॉन्ग है। अच्छा, पानी लगता नहीं, गाना गाना लगता शिकायत लाना मेरा को लेला खोल। ईद का दिन है गले मुझ हमको लगा हमको। जी नसीर भाई। आवाज मेहदी हसन, फिल्म का नाम है इंतजार, मूसीकार निसार बदमी। सेवियां खाई? हर ईद पे ये सवाल जरूर पूछता है उससे। ईद पे सेवियां खाते हैं। ये सेवियों वाली ईद नहीं है। नहीं जी, बकरे से पहले खाते हैं। सेवियां क्या होती है? सेवैया, और सेवैया भी गलत है। सुइयां सुइयां भी गलत है। बंदूइयां भी गलत है, हम भी गलत है, ये भी गलत है, ये स्टूडियो गलत है, ये कैमरे, ये लाइटें गलत है।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ अच्छा ये ईद वाले दिन बड़ा अपनी तरफ से जो है ना सूटेड बूटेड होके आया एक्चुअली इस ड्रेस में गोश्त आराम से मिल गया असल में इसे पता चल गया था कि अता कासमी साहब आज इस लिबास में आ रहे हैं, बस उनकी नकल करने के चक्कर में ये पहना है। सर तुसी भी गोश्त इकट्ठा कर रहे मेरे दोस्त काजी वाजिद के मामू अस्पताल में हैं। वो क्यों? डॉक्टर हैं। अच्छा ये इत्तला हमें क्यों दे रहे हैं? हमने पूछा आप उनके वो इधर ही लाहौर में हैं तो सोच रहा था शो के बाद उनसे दुआई ले लूं। नहीं, डॉक्टर से मुलाकात ऐसे तो नहीं करते ना? ए डॉक्टर खोलने लगे ने। मैंने उनसे एक नुस्खा लेना है। वो लगता है उससे शेव करवानी है। व्हाट इज दिस? तो आप यूं कर रहे हैं इस तरह तो मैं उनसे खारिश की दवाई यार बता लेने दो उन्हें प्लीज। मुझे सिर्फ उनसे 200 रुपया चाहिए आप ये कर रहे हैं ना, ये देखें ना। जी हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पहुंच गया सी मैनू सनम को लिखा है, मामू को नहीं। सनम को खत लिखिए। अच्छा मेरा तखल्लुस पहले सनम था। हमने सनम को खत लिखा। रहने दो मासी जी आपको क्या प्रॉब्लम है? सर बसूरी कितनी आफ्ताब साहब यार तैनू की तकलीफ आई जे बच्ची ईद वाले दिन भी गाउंदे तैनू सूल उठता है तू गाना छੱਡ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖ मैं कद वेखा मैं पक्खा लवावना ओदे तू ਪੱਖਾ ਤੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀ ਪੱਖਾ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਟਿੰਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है शक्ति। जी तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, बाबे आ गए। तू ही चाह तू ही आहे, तू ही बंदगी मैं अचानक है। देखा भी बाजी बैठे, मैं समझा कोई बंदा गा रहा है। वो तू मेरी जिंदगी है, ओ तू मेरी हर खुशी, और गल सुना तू मेरी हर खुशी। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।